Welcome back to another class of biotechnology processes and principles. In this particular class, we'll be talking about the um, first step of biotechnology or first principle of biotechnology. We spoke about in the last class. We discussed the introduction of this new subject. Correct. We also spoke about different scope of this particular subject as a career, right? And when we were talking about the subject, we spoke about three outline processes, three blueprint steps. They are genetic engineering, then followed by chemical engineering, and followed by downstream processing. So out of that, we are talking about genetic engineering in this particular class. Is that right? So what is genetic engineering? To revise again, it is nothing but manipulation of the genes. Correct? It is nothing but manipulation of genes. Of genes or genetic sequences, to be very precise. Of genetic sequences. Is that right? और इन अदर वर्ड्स डीएनए. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट यू हैव अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए, यू हैव अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए एंड दिस स्ट्रेच ऑफ डीएनए हैज़ टू बी मैनिपुलेटेड. तो आप क्या करोगे, अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट विच यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन दिस जीन, जैसे वायरस करता है ना, एक नया जीन को इनकॉर्पोरेट करता है इनटू योर जीनोम, राइट? ये तो नेचुरल मेथड जो वायरस ऑक्यूपाई कर रहा है. बट इफ यू आर एम्प्लॉइंग द सेम प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी, how are you able to do it? How will you do it ultimately? So ultimately I need to, अगर मेरे को जीन मैनिपुलेशन करना है तो, और ये वाला जीन को मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो आई विल हैव टू कट दिस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस समवेयर, और कट करके मेरे को ये जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, कट करके एक जीन को इंट्रोड्यूस कर लिया मैंने. So now ultimately what I have is a manipulated gene, a new recombined gene, recombinated gene. ठीक है, सब गंदा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बेटा, बिकॉज काम के नहीं है, राइट? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फॉलोइंग स्टेप्स है, इन अदर वर्ड्स जीन मैनिपुलेशन के जो फॉलोइंग स्टेप्स है, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू डू इट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन. It is nothing but manipulation of the genetic sequences in vitro, and it deals with following processes. It deals with artificial synthesis. It deals with artificial synthesis. अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था बेटा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो आईटी सेक्टर में डील करता है, और जहाँ पे आप डीएनए सीक्वेंसेस की डेटाबेसेस को आप स्टोर करके रख सकते हो. Like I don't know if I have told you this particular thing, that there are countries like United States, Canada, जहाँ पे population कम है, so every particular individual needs to register their DNA sequences. अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से ह्यूमन का सारा जीनोम का डेटाबेस हम एक कंप्यूटर सिस्टम में एक चिप में रख सकते हैं. करेक्ट? अगर वहाँ पे कोई ये होती है, क्राइम होता है, सो एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लिविंग इन दी vicinity of that particular crime scene will have to give their DNA sequences there. तो वो वहाँ पे मैच करते हैं DNA sequences को, and then they try to find out the culprit, or then they try to find out the individual who was present at near the crime site. और इन अदर वर्ड्स, राइट? सो इन अदर वर्ड्स बोलने का मतलब ये है कि आपको आर्टिफिशियल सिंथेसिस अगर करना है तो आई विल नीड टू हैव दैट एग्जैक्ट सीक्वेंस. अगर मेरे पास एग्जैक्ट सीक्वेंस मिल गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, then I can artificially synthesize the DNA in the lab without using a living organism, because DNA ultimately chemical ही है ना बेटा, एक nothing but purine pyrimidine से बना हुआ एक chemical ही है. Are we understanding it? So it is associated, it deals with artificial synthesis of DNA
isolation of the DNA, isolation of DNA, modification of the DNA, DNA, transfer of the DNA, ट्रांसफर ऑफ दी rDNA, rDNA यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, rDNA का मतलब है मॉडिफाइड डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेटेड डीएनए, ठीक है, एंड हेंस ऑल्टरेशन ऑफ दी ऑल्टरेशन ऑफ दी होस्ट फिनोटाइप। याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इंसुलिन आज मैं इंसुलिन एक बैक्टीरिया में ग्रो कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट पर्टिकुलर जीनोम, I have introduced that particular gene of interest into a virus, sorry, my mistake, into a bacteria, and I have changed the phenotype of that particular bacteria. Is that very clear? Right? So I've changed the phenotype of that particular bacteria. Is that right? So all that steps which we will be following in this particular class. Okay, genetic engineering deals with all of these processes. So अब हम quickly will talk about the steps of biotechnology. Okay, सबसे पहला step क्या है? Making a rDNA. सबसे important step यही है कि अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक होस्ट वेक्टर या फिर एक कैरियर डीएनए में डाल दिया, ठीक है, तो वो डीएनए बन गया rDNA, ठीक है। अब ये rDNA बहुत छोटा अमाउंट में होगा, तो आई विल हैव टू डू दी क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। आई विल बिकॉज मैं मैसिव लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं मैक्रो लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काम कर रहा हूँ। सो मेरे को एक डीएनए सीक्वेंस से काम नहीं होगा। सो आई विल हैव टू क्लोन दिस डीएनए सीक्वेंस टू मल्टीपल क्लोन्स इन वन पर्टिकुलर सेल सो दैट आई कैन यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट। ओके, जीन क्लोनिंग करने के बाद मैं करूँगा जीन ट्रांसफर। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं बेटा। वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, अब ये सब चीज़ें करने के लिए आई विल हैव टू रिक्वायर सर्टेन टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और फॉर सिंथेसिस ऑफ अ rDNA I will require the tools for rDNA technology. Tools for rDNA technology, referring to I will require certain machinery, I will require certain strategy where I am able to cut, I am able to isolate a particular DNA sequence, then cut that particular DNA sequence. यहाँ पे cut का मतलब क्या है? Breaking the phosphodiester bond, right? तो मेरे को अगर कट भी करना है तो मेरे को ऐसा कट करना है जहाँ पे पूरा डीएनए को डैमेज ना हो. आई विल हैव टू चूज अ पर्टिकुलर. नहीं तो डीएनए तो मैं कैसे भी कट कर सकता हूँ. मैं अगर डीएनए को हीट करूँगा तो भी डीएनए अनवाइंड होना चालू करेगा, अनजिप होना चालू करेगा और टूट भी जाएगा अल्टीमेटली. तो मेरे को कचरा नहीं चाहिए, मेरे को डीएनए का पीसेस नहीं चाहिए. आई रिक्वायर अ ब्रेक इन द एंटायर सीक्वेंस सो दैट मेरे को एक नया सीक्वेंस जोड़ने का स्कोप मिल जाए और मैं एक rDNA बनाऊं. राइट तो सबसे पहले आई विल रिक्वायर सर्टन मॉलिक्यूलर सिजर्स जो डीएनए को कट करे, फिर मॉलिक्यूलर बाइंडर्स. सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो मैं ये टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टूल विच आई विल रिक्वायर इज एंजाइम्स. अब एवरीथिंग, बिकॉज डीएनए इज अ केमिकल मॉलिक्यूल, एक केमिकल मॉलिक्यूल को अगर डिग्रेड करना है, केमिकल मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो आई विल रिक्वायर अनदर केमिकल एंड दैट अनदर केमिकल इज एंजाइम्स. ठीक है. अब उसके बाद मेरे को ये rDNA को ट्रांसफर करना पड़ेगा इनटू अ सूटेबल होस्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर. ठीक है, वेक्टर. ये सब टेक्निकल टर्म्स है बेटा.
माई मिस्टेक, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है। सो एंजाइम से मैं कट करूँगा, फिर उसको कैरी करने के लिए मेरे को एक वेक्टर चाहिए, मतलब डीएनए को एक वेक्टर डीएनए, मतलब एक कैरिंग डीएनए, ठीक है। डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा काम का चीज़ है, ठीक है। उसको कैरी करने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल में कैरी करने के लिए, आई विल हैव टू रिक्वायर अ suitable source of DNA which can accept my gene of interest। एक बार वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट हो गया, अब मेरे पास जो बना है वो RDT है, RDNA है। अब वो RDNA को मैं डाल दूंगा इनटू अ होस्ट सेल, ठीक है। So out of which enzymes play a major important role in the process of RDNA technology। So enzymes are the principal tool of editing। editing का मतलब समझते हो ना बेटा, editing मतलब काट चाट करना, ठीक है। It is a principal tool of editing। Now let's go back and try to understand the enzymes। So सबसे पहला जो हम एंजाइम की बात करेंगे, that is the first primary enzyme जो हम लोग बात करेंगे बेटा, that is called as restriction enzymes। Now as the word says, restriction का मतलब है stop, ठीक है, स्टॉप करना। एंजाइम तो आपको पता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नथिंग बट दे क्रिएट अ ब्रेक, दे क्रिएट एक पूरा अखंड लंबा सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब साफ एब्सोल्युटली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एकदम प्योर मक्खन जैसा रोड है, ठीक है। और उस मक्खन जैसे रोड में बीच में आप बहुत अच्छे स्पीड पे चल रहे हो और बीच में एक बकवास सा स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है। तो आपकी स्पीड जो है गाड़ी की थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो गई। इज दैट राइट? सिमिलरली एक मस्त अखंड लंबा सा डीएनए है, बीच में अगर मैंने कट किया तो अब वो व्हेन यू रीड दैट पर्टिकुलर डीएनए कहीं तो आकर वो रुक जाएगा, राइट। तो इन अदर वर्ड्स एक पूरा कंटिन्यूअस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन लाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो इन अदर वर्ड्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर, बिकॉज ये मॉलिक्यूल को कट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। नाउ दीज व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये करते क्या है? दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, they break the phosphodiester bonds। Is that very clear? ठीक है, तो दे आर मॉलिक्यूलर सिजर्स क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं, एंड दे हाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल, दे विल ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो इन अदर वर्ड्स दीज एंजाइम्स, दीज आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ, यहाँ पे हमको यही याद रखना है दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ हाइड्रोलेजेस। Is that very clear? They will try and introduce, understand, please understand this। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको क्लास ऑफ एंजाइम्स की बात की थी, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ हाइड्रोलेसेस विच विल इंट्रोड्यूस H plus and OH minus ions, and they will break the phosphodiester bond, creating a 3-5' sequence and a 3-5' sequence। समझे बेटा? तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है जो न्यूक्लिक एसिड के बीच में कट कर रहा है, या इफ यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू दी बायोमोलिक्यूल्स में, आई हैव टॉट यू एंजाइम्स। सो जो न्यूक्लिक या फिर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में भी हमने बात किया है, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, दोज सेट ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस, करेक्ट। जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस। इफ यू रिमेंबर इन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन वी स्पोक दैट DNA and RNA are acted upon by DNases and RNases which will break them into nucleotides, and मतलब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। और न्यूक्लियोटाइड पे काम करते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड पे काम करते हैं न्यूक्लियोसाइडेज। ये सब मैंने डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, करेक्ट। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो
नाम रेस्ट्रिक्शन इसलिए डाला है क्योंकि वो ब्रेक क्रिएट करते हैं. बट वेयर आर दे एक्टिंग, व्हाट इज द टारगेट सीक्वेंस? द टारगेट सीक्वेंस इज अ डीएनए. करेक्ट. सो इन अदर वर्ड्स दे आर ऑल्सो रेफर टू एज न्यूक्लिएजेस. ठीक है. बट क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमने बायोटेक में यूज किया है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस. ठीक है. अब न्यूक्लिएजेस भी दो टाइप के हैं बेटा. राइट. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन इज कॉल्ड एज नाम रेस्ट्रिक्शन. क्यों दिया है मैंने आपको बताया. रेस्ट्रिक्शन इसलिए बोला है बेटा से रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं, ब्रेक क्रिएट करते हैं, तोड़ देते हैं. तो पहला जो टाइप का एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन. नाउ दे आर न्यूक्लिएजेस. सो डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर कटिंग, they are referred to as restriction exonuclease and restriction endonuclease. Restriction exonuclease and restriction endonuclease. अब अच्छी बात नाम बता रहे हैं. देखो एक्सोन्यूक्लिएज मतलब ये ऐसा न्यूक्लिएज है, ये ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा. बट कहाँ पे? एक्स्ट्रा एग्जिट या एंड्स पे तोड़ेगा. नाउ इफ यू रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस विच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल अ 5' 3' सीक्वेंस एंड अ 5' 3' सीक्वेंस. ठीक है. एक रेस्ट्रिक्शन मतलब यहां पे हम लिखते हैं पहले कि इसका डेफिनेशन क्या है. इट क्लीव्स का मतलब है कट करना. ठीक है. इट क्लीव्स द न्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड्स ऑफ डीएनए. इसीलिए इसको क्या बोला है बेटा? एक्सोन्यूक्लियस. अब डीएनए एक लंबा सा रस्सी है. करेक्ट. जैसे फ्रेंडशिप बैंड की होती है ना, वो फ्रेंडशिप बैंड एक सिरा अगर टूट गया, एक सिरा अगर बाहर निकल गया तो पूरा फ्रेंडशिप बैंड ऐसे डिसमेंटल होके गिर जाती है. करेक्ट. तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल एब्सोल्युटली हम थोड़ा सा एंड्स को थोड़ा सा जला देंगे सो दैट वी सूचर देम. करेक्ट. सो दैट हम उसको सील कर देते हैं और अननेसेसरी धागा ना निकले. करेक्ट. सो रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इट विल ट्राई एंड कट द डीएनए एट द एंड्स. इट विल क्लीव द न्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड्स. ओके. मतलब फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसने तोड़ दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया. ठीक है. तो ये ऐसे तोड़ते जाएंगे. कहाँ पे? एंड्स ऑफ द डीएनए में तोड़ेंगे बेटा. वो माय मिस्टेक. ओके. एंड्स ऑफ द डीएनए में तोड़ेंगे वो. वेरी क्लियर. सो जो डीएनए एक लंबा, ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया है. आपको पता है कि डीएनए कितना लंबा होता है? approximately 1.7 to 2 meters. right. so such a लंबा DNA stretch of DNA के ends में अगर वो कट कर रहा है तो it's called as a exonuclease. so ultimately what do you get here? अगर यहाँ पे ये तीनों कट हो गए तो ये आपका 5' एंड होगा, ये आपका 3' एंड होगा. सिमिलरली ये आपका 3' एंड होगा, ये आपका 5' एंड होगा. सो what you can see is this section is a double stranded DNA और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स है. समझ में आ रहा है बेटा? सो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का क्या करेगा? इट इज क्लीविंग द डीएनए, इट इज क्लीविंग द न्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड्स ऑफ द डीएनए. Whereas restriction endonucleases क्या करेगा? लंबा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है उसको बीच में से ही तोड़ देगा. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ 5' एंड एंड दिस इज अ 3' एंड. सिमिलरली ये 3' होगा, ये 5' होगा. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक ऐसा न्यूक्लियस जो डीएनए के अंदर बीच में काम करेगा. एक लंबा 1 मीटर का डीएनए है तो उसके बीच में अगर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस काम करेगा तो वो 500 बोल रहा हूँ, सॉरी 50 सेंटीमीटर्स ऑफ डीएनए में कट करेगा. इज दैट राइट? सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस विल ट्राई एंड विल
cleave or it will break randomly inside. It will break the phosphodiester bond inside such that you get two fragments. ठीक है, एक छोटा फ्रैगमेंट आपको मिलता है 5-3- और 3-5-। सिमिलरली ये दूसरा फ्रैगमेंट मिलता है जो है 5-3-, ये है 3-5-। Are we understanding it? So in other words, let's try and write the definition of this, that restriction endonucleases, it cleaves the nucleotides, within the DNA molecule, within the DNA. ओके बेटा, ठीक है। तो मेरे काम का कौन सा चीज़ है, मेरे को डीएनए को बीच में एंड में तोड़कर क्या फ़ायदा है, कोई काम का ही नहीं है ना, लटकाना थोड़ी, पूछ थोड़ी बनानी है ना। आई विल हैव टू सिक्योरली ट्रांसपोर्ट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बिटवीन द डीएनए सो सच दैट द जीन ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट मूव आउट, या फिर इट इज़ एब्सोल्युटली प्रॉपरली फिक्स्ड इन टू दैट पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड। तो मेरा जो इम्पॉर्टेंट है आरडीटी के लिए वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ई लीस्ट भी नहीं बोल सकता, कोई काम का नहीं, एकदम फालतू का एंजाइम है, इसको फेंक दो निकाल कर, ठीक है। बट सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना पड़ता, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, एंड दिस इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो अब मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के भी हम डिटेल में टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, समझे आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इट इज क्लीविंग द डीएनए फ्रॉम द इन द बिटवीन विद इन द डीएनए स्ट्रैंड। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Now, when you talk about types of restriction enzymes or types of restriction endonucleases, अब देखो थोड़ा सा confusion आपको यहाँ पे हो सकता है। restriction enzyme एक broad term है। restriction enzyme में दो कैटेगरी है, restriction endonuclease, restriction exonucleases। restriction exonucleases को निकालो और डालो कचरे के डब्बे में, किसको, एक्सोन्यूक्लियस को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आगे लेकर चलो, बिकॉज ये मेरे काम का चीज़ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग इन माय नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस और आरडीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ऑल्सो ऑफ 3 मेजर टाइप्स। अब मैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस उसको RE करके लिखूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दे आर टाइप 1 RENS लिखते हैं, ठीक है। तो एंडो आपको ये समझ में आ जाएगा, एंडो EN, ठीक है। देन यू हैव टाइप 2 RE, ओके, एंड देन यू हैव टाइप 3 RE. Correct? So type 1, type 2 and type 3 RE. Now what are the major differences? We'll try to list out the major differences are, and we'll talk about which is the most important one, which is the most preferable one by all the scientists worldwide, ठीक है। So restriction एंडोन्यूक्लियस का टाइप 1 जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। मतलब ये कौन सा है, 3 सब यूनिट्स, मतलब ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, सॉरी माय मिस्टेक, टर्शरी होता है क्या, 3 सब यूनिट्स है, मतलब इसमें इट इज़ अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बेटा, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वेयर एज टाइप 2 जो है, इट इज़ अ टाइप 2 जो है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये टर्शरी स्ट्रक्चर का है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है, कोई स्ट्रक्चरल तमाशा नहीं है, ठीक है। वेयर एज रेस्ट्रिक्शन टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर मेड अप ऑफ
2 सब यूनिट्स, मतलब ये भी क्वाटरनरी है बेटा, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स की तरफ जाओ और बोलो मेरे को कि कौन सा सबसे स्टेबल एंजाइम हो सकता है फॉर माय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या रेस्ट्रिक्शन जो एक्सपेरिमेंट है डीएनए को कट करने के लिए, कौन सा सबसे स्टेबल होगा, इसे देखकर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2, बिकॉज इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, करेक्ट। दैट इज one point of view. Then the other point, this is first point, the other point is for the activity of type 1, there is requirement of this enzyme, it requires ATPs बाहर से देना पड़ेगा, Mg+2 बाहर से देना पड़ेगा जब ये आप ये एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर कंपोनेंट, देयर इज वन मोर केमिकल कंपोनेंट, दैट इज N-adenosine methionine। इसको आप कोफैक्टर के जैसे बोलो, ठीक है। तो फॉर द proper activity of type 1 restriction endonuclease, you require these 3 major moiety, that is ATPs, Mg+2 and N-adenosine methionine. Whereas type 2 only requires Mg+2। अब इसको देखकर भी मेरे को समझ में आ रहा है, अरे सिर्फ यहाँ पे Mg+2 देना है मेरे को, थोड़ा सा Mg+2 के आयंस दे दो, काम हो जाएगा, बाकी सब कौन तमाशा करते बैठेगा, ATP भी डालो और एडिनोसिल भी डालो, तो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर मी, मैं तो पैसे बनाने को देख रहा हूँ ना, है ना, मैं तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से देखूंगा, मैं तो मेरी एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के हिसाब से देखूंगा। सो आई विल एब्सोल्युटली चूज टाइप 2, ओके। Whereas type 3 also requires the same components which are required by type 1. So it requires ATP, Mg+2 and N-adenosine methionine। ओके बेटा, इतना समझा है आपको, ठीक है। अब टाइप 1 जो है बेटा, टाइप 1 आइडेंटिफाइज द डीएनए बट डज नॉट कट द डीएनए, मतलब इन अदर वर्ड्स ऐसे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैंने आपको यही बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे ही कट करना है। तो देर आर सर्टन स्पेशलाइज्ड सीक्वेंसेस जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। हर एक इंसान, हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर वीक स्पॉट पे कट करेगा, एक पर्टिकुलर फेवरेट स्पॉट पे कट करेगा। जनरली आई गिव यू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इससे पहले भी दिया था मैंने, झांसी की रानी की जब भी ये हुई थी, हार हुई थी, राइट। So the British Empire, they targeted the weakest wall to enter into the entire fort of Jhansi, right? So here, that weak spot, every particular restriction endonucleases has its weak spot, right? And those weak spots are called as restriction sites. So type 1 क्या करेगा? Type 1 will identify the weak spot, that is it will identify the restriction site, okay, but does not cut। मतलब घूम फिर कर बात यह है कि जगह तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली बट मैं कट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं काम नहीं करूंगा। सो इट विल ओनली आइडेंटिफाई द रेस्ट्रिक्शन साइट बट इट डज नॉट कट द रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, इट डज नॉट कट द डीएनए। तो कोई काम का ही नहीं ना, फेंक दो ना, निकाल कर क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है बेटा, ओके। तो अगेन इट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो है ये आइडेंटिफाई भी करेगा, टाइप 2 जो है आइडेंटिफाई भी करेगा एंड इट विल कट दी डीएनए,
ठीक है, ये कट्टर ब्रिटिश है, आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसको तोड़कर, तोप के गोले से तोड़कर एंटर भी कर गया। सिमिलरली टाइप 2 जो है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज़ मेजरली चोजन as a tool for biotechnology, so it is most important. और ये क्या करेगा, टाइप 3 भी आइडेंटिफाई करेगा, इट आइडेंटिफाइज ओनली एंड डज नॉट कट। सो ये भी बेटा हुआ लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बच्चे मेरे को पूछोगे सर दोनों जगह पे तो सेम सेम लिखा है, ये भी कट नहीं करता, टाइप 1 भी कट नहीं करता और टाइप 3 भी कट नहीं करता, दोनों जगह पे तो सेम सेम लिखा है। बेटा ऑल दी अदर पॉइंट्स आर सेम एक्सेप्ट फॉर दिस 3 यूनिट एंड 2 यूनिट, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। वेयरएज टाइप 2 जो है मेरा फेवरेट, टाइप 2 जो है ओके इसके पास सिंपल स्ट्रक्चर भी है तो स्टेबल स्ट्रक्चर भी है, ये ज़्यादा लालच भी नहीं लेता, ओनली Mg+2 लेता है, ठीक है, एंड काम भी अच्छे से करता है। सो द मोस्ट चोजन वन, द मोस्ट फेवरेबल वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है, दैट इज टाइप 2 इज द मोस्ट फेवरेबल एंजाइम। समझे क्या? ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ, मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, तो ये कहाँ से आया, मतलब हाउ ऑन अर्थ डिड वी फाइंड दिस एंजाइम, वेयर डिड वी फाइंड दिस एंजाइम, ठीक है। सो दिस एंजाइम वाज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये एंजाइम की डिस्कवरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कहाँ से करा आपने, वेयर डिड यू फाइंड इट, यू फाउंड इट इन दी बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करते हैं कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसने मतलब ये फाइंड आउट कहाँ से किया है, इट वाज फाउंड आउट बाय H. Smith and Nathan. These were the two important individuals who discovered, ठीक है, discovered the restriction endonucleases in the bacteria, and because of which they were awarded the Nobel Prize, ठीक है। So they were able to receive the Nobel Prize for their discovery of restriction endonucleases. Is that right? So where did they find out? They isolated it. They isolated it from a bacterial cell. अब एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सर बैक्टीरिया क्यों ऐसा चीज़ बनाएगा जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करे, है ना, बैक्टीरिया को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्यों ऐसा एक एंजाइम बनाएगा जो अपना ही न्यूक्लियस के, उसको, उनके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं है, जो अपना ही डीएनए को तोड़ेगा, करेक्ट। सो इन अदर वर्ड्स द सोर्स, आई टोल्ड यू, द सोर्स इज बैक्टीरियल सेल. The source is bacterial cell. And what does this enzyme ultimately do to the bacterial cell? What is it? It is advantageous enzyme है या non advantageous enzyme है, तो bacterial cell बनाता है, but क्यों बनाता है? So bacterial cell makes up, a bacteria produces the restriction enzymes to protect itself from phage DNA or bacteriophage DNA.
सो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया के लिए इट इज अ फॉरेन डीएनए. Now we know what is a bacteriophage. A bacteriophage is a virus which attacks bacteria. करेक्ट. सो जैसे ही एक बैक्टीरियल सेल को वायरस का अटैक होता है या फिर बैक्टीरियोफाज का अटैक होता है, द बैक्टीरियोफाज विल ट्राई एंड इंट्रोड्यूस इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल. तब एज अ डिफेंस मशीनरी, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, ये जो फाज डीएनए है it breaks down the phage DNA. It breaks down the phage DNA, thereby protecting the bacterial life. वेरी क्लियर बेटा. ठीक है. सो ये काम है बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का. तो मतलब बैक्टीरिया अपने लिए वो बनाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं. अब सर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं तो डीएनए तो वायरस का भी एटीसीजी से बना है, बैक्टीरिया का भी एटीसीजी से बना है, तो ये एंजाइम को पता कैसे चलता है कि ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया का डीएनए है और ये स्पेसिफिकली वायरस का डीएनए है? हाउ इज दिस पर्टिकुलर एंजाइम सो स्पेसिफिक फॉर वायरल डीएनए? ये भी बात है ना. तो इनकी स्पेसिफिसिटी जो है, जब ये बैक्टीरिया, व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके डीएनए पे भी एक्ट कर सकता है. सो द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स, ये सब आने वाले क्वेश्चंस है बेटा. ठीक है. द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स डीएनए, इट्स host DNA या its mother DNA or its chromosomal DNA. It protects its DNA by a process called as DNA methylation. DNA methylation and acetylation. मतलब जो तुम्हारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ऑफ द डीएनए, उस शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे मिथाइल ग्रुप्स या एसिटाइल ग्रुप्स लग जाते हैं, चिपक जाते हैं. तो जो आपका फ्री फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो फ्री एरिया है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बाइंड करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली ऑक्यूपाइड बाय द मिथाइल ग्रुप एंड हेंस बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स डीएनए, इट्स ओन डीएनए, बाय डूइंग द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन. सो मतलब घूम फिर कर बात ऐसी है कि व्हेनेवर देयर इज अ बैक्टीरियल फाज का एंट्री, ठीक है, सो बैक्टीरिया गोज अहेड एंड इट ट्राइज प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है. जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, ट्रांसलेशन चालू हो जाता है, वहाँ पे एक अनदर मशीनरी स्टार्ट्स अप एंड द प्रोसेस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन स्टार्ट्स. सो डीएनए मिथाइलेशन और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रोडक्शन दोनों साथ में होता है. डीएनए मिथाइलेशन फिर अपने होस्ट सेल को वो प्रोटेक्ट करेगा एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आने वाले खतरनाक डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा. Very clearly understood beta. So that is the major point. This particular slide is very, very, very important because a lot of questions, 3 questions can be asked from this particular section. Ki how does the bacteria protect itself, its own DNA? ठीक है. And what is the use of restriction enzyme, okay, for the bacteria? ठीक है. And who isolated the first restriction enzyme and did they get a Nobel Prize for it? So 3 questions इस particular slide से पूछे जा सकते हैं. Okay. So in this particular class we will only finish up till a nomenclature of the bacteria, restriction enzymes. ठीक है. और उसके बाद की क्लास में हम लोग डील करेंगे with respect to the restriction sites. ठीक है. अब देखो बेटा, ये एंजाइम डिस्कवर हुआ है, नया ताज़ा डिस्कवर हुआ है, तो इसको नाम देना पड़ेगा, है ना. तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है, बैठी हुई कमिटी है, उन्होंने इस एंजाइम को नेम करने के लिए दे यूज्ड अ स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर टेक्निक. ओके. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो इनको है ना, इनको हमने कोड्स दिए हैं.
ठीक है, हम जैसे हाइड्रोलेजेस, जैसे हमने नाम बोले हैं ना, तो दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बिकॉज ऑल ऑफ दैट आर इंक्लूडेड अंडर हाइड्रोलेजेस, राइट? सो दे हैव द रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज ये अपने रिसर्चेस में यूज़ होते हैं, तो हम कोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? सो ये कोड्स क्या है? द नॉमेनक्लेचर जो है, दे फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है? लेट्स टेक अप वन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज EcoR1। EcoR1 ये एक एंजाइम है, ठीक है? EcoR1 में E स्टैंड्स फॉर द जीनस। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जीनस ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म, CO स्टैंड्स फॉर स्पीशीज ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म, species of the source organism, and R stands for the strain. R stands for the strain of the bacteria, ठीक है? And ये नंबर जो है, that stands for the order of discovery. मतलब एक बैक्टीरिया के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ने वाले हैं, हर बैक्टीरिया का एक पैथोजेनिक स्ट्रेन होता है, एक नॉर्मल सेफ स्ट्रेन होता है, एक्सेट्रा, ठीक है? सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जीनस जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया है, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम E. coli RY123 स्ट्रेन। तो ये मेरा सोर्स ऑर्गेनिज्म है। सो नॉमेनक्लेचर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि नॉमेनक्लेचर में व्हाट इज द फर्स्ट लेटर इंडिकेट? इट इंडिकेट्स द जीनस एस्चेरिशिया, ठीक है? स्पीशीज के दोनों, मतलब बाकी के दो लेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं? स्पीशीज के फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, ठीक है? तो एस्चेरिशिया कोलाई, R स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन, RY है तो हम R लिखते हैं, और 1 स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, RY123 इज द स्ट्रेन, ठीक है? जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हमको पता चलता है, और RY स्ट्रेन जो है उसमें से सबसे पहला एंजाइम इज EcoR1। वैसे EcoR2 हो सकता है, EcoR3 हो सकता है, वैसे समझे बेटा, ठीक है? सो EcoR1, सो व्हाट इज फर्स्ट लेटर इंडिकेट? एंड फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज गिवन कैपिटल बिकॉज वो जीनस इंडिकेट कर रहा है। सेकंड के दो लेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट द स्पीशीज ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म, एंड बाकी का जो नेक्स्ट लेटर जो है, जो कैपिटल में लिखा जाता है, दैट इज इंडिकेटिंग द कैपिटल या स्मॉल, जो भी है स्ट्रेन के हिसाब से, इट इज इंडिकेटिंग द स्ट्रेन, एंड द नंबर इज इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। Is that very clear? Okay. All right. So the next example ले लेते हैं, एक और example ले लेते हैं हम, that is Hind3. Hind3. अभी Hind3 में H क्या है? H stands for Haemophilus. Haemophilus. IN stands for influenzae, Haemophilus influenzae. D stands for the D strain, and 3 stands for the order of discovery. ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सोर्स के और सोर्सेस के नाम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग सोर्सेस के नाम पढ़ने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आई विल गिव यू द एंटायर लिस्ट जो आपको पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जितने एंजाइम्स एनसीईआरटी में दिए हैं एटलीस्ट उसके सोर्स ऑर्गेनिजम्स हमको याद रखने हैं, ठीक है बेटा? तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो फेवरेट है सबका, दैट इज BAM-H1. BAM-H1, BAM stands for bacillus. BAM stands for bacillus.
amylo liquefations. amylo liquefations के H स्ट्रेन से बना है. अमाइलो लिक्विफेशंस के H स्ट्रेन से ये एंजाइम आइसोलेट किया है. ठीक है. वन इंपॉर्टेंट नोट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड note is Hind2 is the first restriction endonuclease to be isolated. सर आप मेरे को पूछोगे सर Hind1 होना चाहिए तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी Hind2 क्यों दिया है? बेटा इसका आंसर सच में मेरे को नहीं पता. ठीक है. बट ऑल दी बुक्स विल गिव यू दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट Hind2 ऐसा हो सकता है कि Hind1 उन लोग ने डिस्कवर कर लिया बट दे वर नॉट एबल टू आइसोलेट, प्योरीफाई करके आइसोलेट नहीं कर पाए. तो साइमल्टेनियसली कोई और इंस्टीट्यूट में कोई और साइंटिस्ट ने Hind2 दूसरा एक एंजाइम जो थोड़ा सा Hind1 से थोड़ा सा सिमिलैरिटी रखता है बट नॉट सेम है, उसको आइसोलेट कर दिया और उसको उन्होंने नाम दे दिया. ठीक है. बिकॉज दीज रिसर्चर्स, दीज एक्सट्रैक्शंस या आइसोलेशंस दे आर डन इन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. एक मदर इंस्टीट्यूट नहीं है ना, सब इंस्टीट्यूट इस पे सामने साथ काम कर रहे हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड एंड प्योरिफाइड इज Hind2 extracted from Haemophilus influenzae D strain. समझी गए हो बेटा? तो ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हम लोग एक पूरे लिस्ट में पढ़ेंगे. सो फॉर टुडेज सेशन दिस मच इज इनफ. टुमारो वी विल बी टेकिंग अप अनदर क्लास विच विल टॉक अबाउट what makes these restriction enzymes or restriction endonucleases so specific to certain sequences. तो उनको सीक्वेंसेस पे अटैच करने के लिए कौन हेल्प करता है? रेस्ट्रिक्शन साइट. आई टोल्ड यू. सब ऐसे लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं सर. तो ये सब कमर्शियल टर्म्स है बेटा, ये सब टेक्निकल टर्म्स है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या? एक सादा एंडोन्यूक्लियस. ठीक है. उसको रेस्ट्रिक्शन ऐड इसलिए किया है बिकॉज वी नीड टू डिफ्रेंशिएट. ये बायोटेक का एंजाइम है इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन वर्ड आगे लगाते हैं, जैसा उसका काम है. Are we understanding it? So do not get confused with respect to सर ये क्या है बकवास ऐसा सब चल रहा है. हाँ मैं मानता हूँ चैप्टर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है बट चैप्टर एक एब्सोल्युटली अनटच्ड चैप्टर है. सो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा. अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो टॉपिक को एटलीस्ट समझ के तो ले लो और पढ़ लो. बिकॉज यू कांट रियली टेक दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर ग्रांटेड बिकॉज दिस ईयर there were large number of questions which were expected from this section. Is that very clear beta? So I take a move from this particular session. Thank you so much for watching.